So welcome students. Today we are going to see about the dynamometer type wattmeter. Now first of all, if we talk about the different types of instruments and its classification, then dynamometer type instruments जो होते हैं, in which we have the moving coil, two set of moving coil. One is called as a you can say that there is no any permanent magnet basically. Okay, both will be the magnetic coils, and those coils are divided, or we can say given a name as per their function, called as a fixed coil and moving coil. Okay, so let's see how this instrument is going to work. First of all, if you talk about the wattmeter, so if we talk about the first part, that is watt. Now watt is a unit of power. Okay, watt is a unit of power, and whenever we are measuring electrical power, that time we are going to use this wattmeter. Now if we talk about the wattage or power, it is a indicating, or you can say it is a इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उस समय पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पावर का जो वैल्यू है वो आपको वहां से वो इंस्ट्रूमेंट देने वाला है. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? नाउ नाउ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज अ मूविंग कॉइल. इसके अंदर मूविंग कॉइल प्रेजेंट होता है, बट द ऑपरेटिंग फील्ड जो होता है दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द another coil. We can say we call it as a fixed coil. Okay, now fixed coil instead of a permanent magnet. Say for example in PMMC instrument we have seen that there is a permanent magnet and in which the coil is moving, permanent magnet moving coil. But in dynamometer type instrument what happen, both are coils, fixed coil भी है और moving coil भी है. Now the fixed coil which is producing the operating field and the wattmeter, where two components are important. One is called as a voltage, one is called as a current. So voltage and current के proportion में अगर आपका magnetic field create हो रहा है and that magnetic field is interacting with each other, then we can say ये जो आपका dynamometer type wattmeter है वो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट इज इक्वल टू पावर, P इज इक्वल टू VI, इस तरह से आपको रीडिंग देने वाला है. ओके, करंट कैरिंग मूविंग कॉइल ट्राइज टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द फील्ड. ओके, जो फील्ड के साथ अलाइन होना चाहता है, एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक इंटरैक्शन you can say that there is a deflecting torque. What is the word? Just type it in the comments. Deflecting torque. Okay, deflecting torque जो है वो produce होता है and you can get a movement of a pointer. Now if we talk about the diagram, are you able to see the diagram? Yes, sir. Now in this diagram you can see, if we talk about the source and if we talk about the load, it means the wattmeter will have 1, 2, 3 and this 4 connections. Okay, so we have to connect 4 terminals of a wattmeter by which there is an incoming source and there is a output or load, you can say, because of which you can get a value of current. अगर आपने लोड को सीरीज में कनेक्ट नहीं किया तो आप क्या हो सकता है, आप उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, and because of that you will get a value of this particular power which is consumed in this load by this measuring instrument on this dial दिख रहा है आपको, ये डायल के ऊपर आपको इसका रीडिंग मिलेगा. Now let's see what the theory says. A dynamometer type instrument is primarily consist of two coils, fixed and moving. Fixed coil is split into two equal parts. See, this is a fixed coil, this is another fixed coil, and from the fixed coil you can say that it is said that here that it is a current coil. Current coil का मतलब क्या है? The current will be pass through coil. yes. And what is another you can say implication or another meaning of this sentence? करंट अगर पास हो रहा है तो लोड में से जो करंट पास हो रहा है which is not a normal or small current. Do you agree with me? Hello. Yes, sir. So if the current is on the higher side, you can expect that that coil should have enough capacity to carry that current. It means the cross section area of the coil wires, or you can say that winding, that coil जो है वो coil का जो diameter है it will be a thicker, right? Do you agree with me? Yes, sir. वहां से पूरा लोड करंट जो है वो फ्लो होने वाला है, and because the load current is flowing, you can say the coil is made up of a very thick conductors. Now
these thick conductors are associated with the fixed coil, so that on the moving system you are not having a large weight. ये समझ में आया आपको? अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो थिकनेस में ज्यादा है उसके नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से उसका वेट जो है वो भी ज्यादा होगा, तो वो जो हेवी वेट वाला जो कॉइल है उसे हमने फिक्स्ड कॉइल के तरीके से रखा है। आर यू विद मी? एंड जो वोल्टेज कॉइल है जिसका डायमीटर जो है वो काफी कम होगा, डायमीटर कम है मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक वेट जो है वो भी कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन से कि हमारा जो पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं जो मूविंग सिस्टम है वो मूविंग सिस्टम क्या होगा, उसके ऊपर हेवी वेट को मूव करने का प्रेशर नहीं रहेगा। सो लाइट वेट जो आपका वोल्टेज कॉइल है दैट विल बी एक्टिंग एज अ मूविंग कॉइल। और मूविंग कॉइल के साथ उसको स्पिंडल भी अटैच करना जरूरी है। स्पिंडल इज अटैच टू द मूविंग कॉइल एंड विच गेट्स द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? लेट मी जूम इन, सॉरी, गिव मी अ मोमेंट। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ड्रॉ करना पॉसिबल हो रहा है क्या आपको? Sir, we have to draw upper diagram. तो डायग्राम ड्रॉ करने को हो रहा है, मतलब उसमें दिख रहा है क्या आपको? दैट इज अ क्वेश्चन। यस सर। अगर विजिबल नहीं है तो मैं दूसरे इसमें इसको ये करता हूँ, कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। Is it visible now? यस सर। Yes, sir. Go ahead. Done? यस सर। Sir, your mic is off. So we have this particular wattmeter type, dynamometer type wattmeter, in which we are basically using this for power measurement. Current coil is connected in series, okay, series of the load, and then we have a potential coil or a voltage coil, or we can also call it as a moving coil, which has a voltage which is provided to the load, and the fixed coil which is connected with the series connection with the load, so that it has a proper current which is flowing through the load circuit. So load circuit में से जो करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज है उसके अक्रॉस, ये दोनों चीज का यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर रिसीविंग अ डिफ्लेक्शन टॉर्क, एंड दैट टॉर्क इज proportional, or we can say that which is dependent on the power being consumed in the load. Okay, I think this is visible to you. Okay, perfect. So now what are the advantages and disadvantages of dynamometer type instrument? Let's see that. Okay. So now we have first advantage, that is we can use it for both AC as well as DC. PMMC instrument के लिए हमारे पास डिसएडवांटेज क्या था? इट कैन बी ओनली यूज्ड फॉर द डीसी मेजरमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वी कैन यूज इट फॉर बोथ द पावर सप्लाई सिस्टम, दोनों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव इट हैज अ यूनिफॉर्म स्केल, ये शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यूनिफॉर्म स्केल एंड जो आपका व्हाट यू कैन से कंप्रेस्ड स्केल क्या होता है, राइट? कैन एनीवन जस्ट रिकलेक्ट दैट? कोई बता पाएगा यूनिफॉर्म स्केल का मतलब क्या है? सो एवरी एंड each part of your scale is of the same width, you can say, और same pattern में वो रहेगा, uniformly distributed। ऐसा नहीं कि पहले नजदीक है आपका डायल, जैसे आपके घड़ी में आप देखते हो तो आपके जो दीवार पे घड़ी लगी है उस पे देखो बराबर सेम डिस्टेंस पे आपके आवर्स लिखे हैं 1 2 3 4, राइट? This is called as a uniform scale. Then we can get a high degree of accuracy through the careful design of the coils. Coil का जो डिजाइन है वो अगर अच्छे से करते हैं तो we get a very good accuracy. Then power consumption का measurement करना ये एक repeated task है and it requires a accuracy. Okay, तो precision भी उसमें इंपॉर्टेंट है कि हर बार अगर हम लोग सेम बल्ब के लिए या फिर सेम प्रोडक्ट के लिए पावर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें सेम रीडिंग आना चाहिए। तो अभी हम अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि हम ये वैट मीटर का एप्लीकेशन या इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स वेयर वी कैन यूज
और वेयर वी कैन डू द एप्लीकेशन ऑफ वैट मीटर। आपको क्या लगता है? आप इसका पर्पज ही पावर मेजर करना है, बट पावर किसकी मेजर करेगा वो? क्या हम इसे साइकिल पे लगा सकते हैं क्या कि 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना पावर यूज किया गया, या लैब बेंच के लिए यूज कर सकते हो? ओके, व्हाट एल्स? थोड़ा वेरी कॉमन इन जनरल ऐसा सोचो कि आप इंजीनियर नहीं है और आपको बताया कि ये मशीन का काम ये है कि ये आपको नंबर में ऐसा दिखा देगा कि इतना पावर कंज्यूम होता है इसमें, तो उसको हम कहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्या ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. तो Some अगर motor. कोई इक्विपमेंट बनाया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, समझो बल्ब बनाया, तो बल्ब वो बनाया है वो 5 वाट कंज्यूम करता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए वैट मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम? Yes, sir. ओके, ऐसा सोचो जरा, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? Some डीमार्ट motor. में, डीमार्ट में यूज कर सकते हैं क्या इसको? Sir, refrigerator. हाँ, Sir, refrigerator. रेफ्रिजरेटर में मतलब कैसे? घर पे लगाओगे हर एक के जाके? अभी समझो जहाँ पे हम लोग परचेस कर रहे हैं, डीमार्ट में या फिर इधर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, या यहाँ पे विजय सेल्स वगैरह है, वहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि हमें ये टीवी लेना है, तो हमने उसको बोला कि इसका पावर कंजम्पशन कितना है, तो वो उसके ब्रोशर पे लिखे या फिर उसके जो डिटेल्स रहता है उस पे लिख के वो क्या कर सकता है, बता सकता है। बट अगर वहाँ पे ऐसा हमने ये इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और वहां पे इसको टीवी को चालू किया और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि दिस टीवी इज कंज्यूमिंग 200 वैट्स ऑफ पावर, बराबर, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। आर यू विथ मी? Yes, sir. तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर ही हम वो लगा देंगे, ऐसा बोल रहे हो क्या? हर बार दिखाएगा रेफ्रिजरेटर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ऐसा पॉइंट था तुम्हारा साहिल? और सोचो आप लोग जरा, थोड़ा सोचो कि हम लोग ये इक्विपमेंट के बारे में तो पता चल गया सर, अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ और आंसर दो मुझे। चैट बॉक्स में 1 2 3 ही आंसर आया है। एवरीवन गिव द आंसर। सोचो जरा, एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास जिसकी वजह से हमें पावर कंजम्पशन पता चलता है, इलेक्ट्रिक कहाँ मीटर। कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? चैट बॉक्स में बताओ। In industries to check the power rating, to test the power consumption of house wiring. Okay, okay, ठीक है। चलो, एनीवेज आपको इतना तो समझ में आया कि पावर मेजरमेंट के लिए है, बट कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो समझ में नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर हम लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, राइट? तो जैसे मोटर कंजम्पशन चालू करेगी, वी कैन सी दैट। ओके, सो अभी देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डायनेमोमीटर टाइप वैट मीटर है, उसको यूज करने में अगर गलत रीडिंग हमें दिखाई देती है तो क्या एरर हो सकती है? ओके, एरर अगर चेंज हो गई तो क्या उसका इफेक्ट होगा, या ये एरर की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अगर आपका अगर एरर है, समझो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका पावर कंजम्पशन है से 500 वैट्स, तो 500 वैट्स के अकॉर्डिंग हम उसके लिए जो केबल है या वायरिंग है वो कैपेसिटी का यूज करेंगे, राइट? और अगर समझो वो वायरिंग या फिर वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया, जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वो अगर 500 वैट की जगह पे आपके वैट मीटर ने दिखाया ओनली 200, तो क्या होगा? यू विल बी यूजिंग द लोअर क्वालिटी और लोअर थिकनेस का वायर यूज करेंगे, और जब वो इंस्ट्रूमेंट रन होगा, दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी रनिंग विद द 500 वैटेज का करंट। इट मींस आपके यहाँ पे फायर इंसिडेंस या फिर शॉर्ट सर्किट, ये सारी चीजें होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इतना समझ में आया आपको? हेलो एवरीवन, Yes, sir. आगे बढ़ते, एरर्स क्या क्या है वो देखते हैं। पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस, अगर पोटेंशियल कॉइल में इंडक्टेंस है तो आपका रीडिंग जो है वो चेंज आएगा, क्योंकि वैट मीटर में लैगिंग पावर फैक्टर की होने की वजह से एंड लीडिंग पावर फैक्टर होने की वजह से ये एरर क्या है, आपके एक्चुअल रीडिंग ऑफ द वैट मीटर को चेंज करेगा। नाउ पोटेंशियल कॉइल में अगर समझो किधर ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, नो व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्किट फॉल्ट? यहाँ से पावर लॉस होता है, मतलब समझो वहां पे आपका कोई पावर लॉस का इक्वेशन क्या है? आई स्क्वायर आर। डू यू नो दिस? आई स्क्वायर Yes, आर। sir. वहां पे अगर पावर लॉस हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो डेफिनेटली रीडिंग में भी
वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा. एडी करंट लॉसेस. एडी करंट का मीनिंग क्या है? एडी करंट्स आर लाइक you have a magnetic field, you have a relative motion between the surfaces, so the coil itself has a magnetic material, and that magnetic material is causing a particular generating an EMF, and that causing a another deflection. मतलब deflection torque जो है आपका वो यहाँ पे change हो रहा है. Okay, now this error is like it will changing the instrument reading. Okay, now in industry it is not possible always to keep the magnetic fields separate. हर बार magnetic field separate आप नहीं रख सकते. Okay, and उसकी वजह से हम हमारे जो stray magnetic field है मतलब वहां पे already present है because of nearby instruments, तो उसकी वजह से भी error आ सकता है. Okay, so this is how we can identify the working of our wattmeter. We can also see the problems associated with it, and when we are working related with the power measurement, only thing is that this power measurement is instantaneous. Okay, what is the word? Instantaneous. Okay, instantaneous का मतलब ये है कि अगर आपका डिवाइस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट और जो आपका लोड है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो ही आपका जो इंडिकेशन है पावर कंजम्पशन का वो आपको क्या करेगा? इंडिकेट करेगा. अदरवाइज इट विल नॉट इंडिकेट. So operation and construction of dynamometer type wattmeter we have covered. Principle and operation of single phase induction type energy meter we covered last time. Now we are going to see the block diagram of digital energy meter. Okay, so block diagram of digital energy meter. This is what we are going to learn in the next 10 to 5 minutes. Now you can give your attendance. I will be giving you a break of say 2-3 minutes and then we will be joining back. Okay.